against the Lord. Hello, welcome to this special episode of Angel TV. नमस्कार, एंजल टीवी के खास इस प्रस्तुति में आपका हम स्वागत करते हैं। My name is Stephen Powell. I'm glad to be with you here again today. मेरा नाम स्टीवन पाउल है और मैं फिर से बहुत आनंदित हूँ आपके बीच में होने में। We're going to continue talking about this subject of the spirit and power of Elijah again today. और आज भी आत्मा और सामत एलिया के शीर्षक में हम जारी रखेंगे। Last week we finished talking out of James chapter 5. पिछले हफ्ते याकूब 5वें अध्याय को हम अध्ययन किया। As James was telling the believers to establish their hearts to be patient and wait for the coming of the Lord, याकूब अपने कलीसिया को सिखा रहा है कि अपने आप में धीरज रखें और इंतजार करें परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए। he also told them to keep singing praises to God. और ये भी सिखाया कि परमेश्वर के लिए स्तुति गीत गाते रहें। He told them to keep earnestly praying, even like the prophet Elijah did. और उन्हें सिखाया कि वो लगातार एक सच्चाई की प्रार्थना करने पाएं जैसे एलिया ने किया है। Jesus said, when he returns, will he find faith on the earth? यीशु कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे क्या विश्वास को इस पृथ्वी पे पाएंगे। Will he find men and women praying? बहुत सारे स्त्री और पुरुष को देखेंगे वो प्रार्थना करते होंगे। Prayer, while being established in the Word of God, is the great connector of our hearts. जो प्रार्थना वचन के आधार पर किया जाता है वो हमारे हृदय से जुड़ा रहता है। It connects us to the eternal reality of who God is, वो उस हकीकत के साथ जोड़ देता है कि परमेश्वर वाकई में कौन है and it keeps us firmly planted in His eternal purpose, even while we're living our temporal lives. उस अनंत योजना परमेश्वर में हमें मजबूत तरीके से लगा देता है हमारे जीवन के अंदर से और बाहर से कार्य करने के लिए। So I encourage you to go back through and read and meditate that passage in James chapter 5. It's so good. और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ जाइए और याकूब 5वें अध्याय को पूरी तरह से पढ़ें और उस पर मनन करें। Today we're going to carry on and talk about how I was visited by the spirit and power of Elijah for the first time in Australia. और मैं आज जारी रखने वाला हूँ कि कैसे परमेश्वर की आत्मा और सामत एलिया का पहली बार मुझे ऑस्ट्रेलिया में मुझसे भेंट किया। Now, as I've talked about in the last few episodes, the spirit and power of Elijah first started to come to me in the year 2017. और पहले शुरुआत में मैं आपसे बात किया हूँ कि 2017 में पहली बार आत्मा और सामत एलिया का मुझसे मुलाकात हुआ। It came to a point of great release in the month of September 2017. 2017 के सितंबर के महीने में एक ऐसे बड़े एक आज़ादी के अवसर पर मेरे जीवन में वो आने लगा। It was at this exact time that a fresh new season of some of the worst hurricanes my nation had ever seen had just been released on America. और वो एक ताज़ी ऋतु था जहाँ पहली बार एक अमेरिका के ऊपर ऐसे हरिकेन्स जो है परमेश्वर के द्वारा आज़ाद किया गया था। This hurricane season was the worst one since Katrina in 2006. और ये जो तूफान था ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही बुरा था जो पहले 2006 में आई हुई थी। It was one of the worst ones in our history. हमारे इतिहास में बहुत ही एक बुरी वाली तूफान था। This was at the exact same time that I flew over to Australia and I began ministering in that part of the world. इसी समय पर मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था जहाँ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। A hurricane named Harvey came inland into Texas. और टेक्सास में इसी समय पर एक बड़ी तूफान आई थी जो हार्वी कहते हैं। This hurricane first made landfall at a place called Corpus Christi, Texas. पहली बार टेक्सास की कॉर्पस क्रिस्टी पे जो है जमीन गिराव का ये वहाँ पर टकराने लगा। Corpus Christi means the body of Christ. कॉर्पस क्रिस्टी का जो मतलब है शब्द का मसीह का देह। So this hurricane would indeed be a message not just to the nation but to the body of Christ. और ये तूफान सिर्फ उस राष्ट्र के लिए ही संदेश नहीं था मगर पूरे देश के लिए पूरे पृथ्वी के लिए वो संदेश था। It went on to the city of Houston and it slowed down in that region. और वहाँ से चलते चलते ह्यूस्टन तक गया और उसके बाद वहाँ के नीचे वाले नगरों में जाने लगा। In just a few days, this hurricane dumped more than 33 trillion gallons of water on that city. ये तूफान 33 ट्रिलियन गैलन के पानियों को उस नगरों के अंदर ले आया।
Hurricane Harvey became the worst flooding disaster in U.S. history. हार्वी तूफान अमेरिका के इतिहास में बहुत ही गंभीर और बुरी एक तूफान था। This fulfilled a prophecy that Brother Sadhu released in 2015. और वो उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो 2015 में साधु जी ने जो भविष्यवाणी करी थी। Brother Sadhu had prophesied that the city in the future would be devastated by floodwaters. और साधु जी ने उस दिन में उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, ये शहर बाढ़ के द्वारा नाश किया जाएगा। It happened just like the prophet foretold. जैसे भविष्यवक्ताओं ने पहले से कहा है वैसा ही वह हुआ। Houston was actually the first major U.S. city to openly elect a homosexual mayor. ह्यूस्टन ऐसा नगर था कि पूरे अमेरिका में पहली बार एक ऐसे समलैंगिक व्यक्ति को राजनीतिक में ले आया। At one time, this mayor was so antagonistic to God and the church ये मेयर एक बार परमेश्वर की कलीसिया के लिए पूरी रीति से विरोध में था that she actually had pastors' sermons subpoenaed by the law and taken to her. वो कानूनी रीति से परमेश्वर के प्रचारकों के विरोध में कार्य करने लगी और उन्हें कैद करने की कोशिश करी। She was seeking to attack pastors in the church for anyone that would dare speak against homosexuality as a sin. वो जानबूझकर मौका देखती थी सारे पासवानों को फंसाने के लिए, अगर कोई भी अपने कलीसिया में प्रचार करें समलैंगिक के विरोध में। This represented a spirit of rebellion in that city. और वो बलवा करने वाली आत्मा को वहां पर प्रकट किया है। Houston is also home to the largest abortion clinic in my nation. हमारे राष्ट्र में ह्यूस्टन ऐसा नगर है जहां पर बहुतायत से गर्भपात करने वाली अस्पतालें हैं। This abortion clinic over the years has been nicknamed the Abortion Supercenter because of all the trafficking of death that it's done in that place. मजाकी रीति से सब लोग कहते थे ये ह्यूस्टन नगर अबॉर्शन करने की सुपर सेंटर है, क्योंकि वहां पर मौत की कार्य बहुत ही गैरकानूनी तरीके से हो रही थी। As this hurricane was sweeping through the Gulf Coast of my nation, causing untold damage, the Lord began to speak to me. जब ये तूफान वो पूरी रीति से वहां के उन तारे तट के किनारे रहने वाले लोगों को विनाश करता गया, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया। I was surprised because what the Lord began to speak to me about was the judgments of God. मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि परमेश्वर जब बात किया अपने न्याय के विषय में बात किया। I'd never really talked about the judgments of God up until that point. तब तक मैं परमेश्वर के न्याय के विषय में बातचीत नहीं किया हुआ था। Up until that point, it seemed like the only things that the Lord really shared with me about was harvest, revival. क्योंकि जब तक परमेश्वर में से सिर्फ फसल के विषय में, बेदारी के विषय में मुझसे बात किया हुआ था। But as I've been teaching, there's two sides to the end time coin. जैसे मैं अब आपको शिक्षा दे रहा हूं, इन अंतिम दिन की बातों जो एक ऐसे सिक्के के बराबर है, दो पहलू है। One side is revival and harvest, but the other is judgment and shaking. एक तरफ बेदारी और फसल है, दूसरी तरफ न्याय और हिलाए जाना है। If prophetic ministers are not balanced in this regards when it comes to God's word, अगर एक भविष्यवक्ता वाली भविष्यवाणी की संदेश देने वाला व्यक्ति अपने संदेश में ऐसे संतुलित ना हो, they will miss the voice of God. वे परमेश्वर की आवाज से चूक जाएंगे। They will miss what God is saying to His church and the nations in these last days. वे चूक जाएंगे कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर कलीसिया के लिए और लोगों के लिए क्या कहना चाहता है। Hurricane Harvey was absolutely the judgment of God upon America. हार्वी तूफान जो अमेरिका के ऊपर आया था, ये पूर्ण रीति से परमेश्वर का न्याय था। Whether you want to say that God directly caused it or God lifted His hand of protection and allowed it, it really doesn't matter. आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, क्या परमेश्वर सीधा सीधा इसमें शामिल था या परमेश्वर अपना सुरक्षा का हाथ हटा दिया ताकि इस प्रकार का तूफान उस नगर में आए, मगर ये परमेश्वर का न्याय है। The cries of all those babies that city has endorsed being murdered have come up before the Lord. उन सारे बच्चों की पुकार जो उन नगर के लोगों के द्वारा हत्या किया गया है, वो परमेश्वर के कानों तक पहुंचा है। The sin and rebellion has come up before the eyes of God. और वहां के बलवा करने वाली बातें और उनके पाप परमेश्वर के नजर के सामने आया है। And the Lord absolutely is allowing many of these judgments and shakings to come upon nations like mine. परमेश्वर सचमुच इस प्रकार के न्याय और इस प्रकार की हिलाव हर एक राष्ट्र में भेज रहा है, जैसा परमेश्वर ने हमारे राष्ट्र में भेजा था।
But I find it very interesting because the Lord actually showed me this months before. बहुत ही दिलचस्प बात यह था कि परमेश्वर इन बातों को बहुत से महीने पहले ही मुझे दिखाया है। But because I didn't have a proper doctrine from the Word of God about judgment, I couldn't tell that it was judgment that God was speaking to me about. क्योंकि मेरे पास कहीं सही तरीके के सिद्धांत नहीं थी परमेश्वर के वचन से, जिस वजह से मैं लोगों को सिद्धपूर्वक मैं बता नहीं पाया कि ये परमेश्वर की न्याय है। I had a vision in the month of March 2017. 2017 मार्च के महीने पे मेरे पास एक दर्शन मिला। I saw the Lord Jesus take a large vessel and pour out floodwaters on my nation. मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़े बर्तन को निकाला, उसमें से पानी को हमारे देश के ऊपर बाढ़ के समान उंडेल दिया। It was not the devil pouring out the floodwaters, it was Jesus pouring out. ये शैतान नहीं था कि वो बाढ़ की पानी उंडेल रहा है, मगर यीशु मसीह उंडेले हैं। But because when I saw God, all I could see was revival and outpouring of the Spirit, I interpreted what I saw as revival. और क्योंकि मैं हर वक्त परमेश्वर को बेदारी और फसल के विषय में बात करता हुआ सुना था, तो इसीलिए मैं इसे बेदारी के रूप में अनुवाद किया। In my vision, when the water hit the ground, it turned to blood. मेरे दर्शन में जब वो पानी जमीन में टकराया तो वो तुरंत खून में बदल गया। In my vision, I originally thought that it was an outpouring of the Spirit that released the power that was in the blood of Jesus. और मैंने दर्शन में जो देखा, मैं अपने आप में ऐसे अनुवाद करने लगा कि ऐसे भेदारी जो परमेश्वर भेज रहा है, जो उसके लहू के द्वारा आने वाला है। That still is a valid interpretation. तब भी वो एक मूल्यदायक अनुवाद है। But the Spirit of God doesn't just pour out blessing and revival, He also pours out judgment at times. परमेश्वर की आत्मा सिर्फ बेदारी और फसल के ही लिए वो उंडेलता नहीं है, मगर न्याय को भी उंडेलते हैं। I found out later that the name of this hurricane, Harvey, actually originally comes from a medical doctor named Harvey. और जब बाद में पता चला कि जो तूफान का नाम हार्वी रखा गया था, वो वहाँ के जो डॉक्टर का एक नाम है हार्वी, उसके आधार पर रखा गया है। Harvey was actually the medical scientist who discovered heart and blood circulation. हार्वी एक ऐसे विज्ञान था जो हृदय के और लहू की दौड़ने के विषय में आविष्कार किया। When I found this out, I became very shocked. जब मैं इसे पता किया तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। I realized that God had actually showed me the effects of the hurricane months in advance. मैं सोचने लग गया, परमेश्वर कई महीने पहले आने वाले तूफान और तूफान के प्रभाव के विषय में मुझे दिखाया है। I now believe that what I saw was the floods of judgment the Lord would later pour out. और मैं तब विश्वास करने लगा कि परमेश्वर के न्याय था जो पहले वो बाद में उंडेलने वाला था। And I believe that now the blood that I saw referred to the Hurricane Harvey. अब वो जो खून को देखा, मैं अपने आप को समझने पाया कि ये उस तूफान जो हार्वी का है उसके विषय पर है। This shook me to my core. और वो मुझे जो है उस लक्ष्य तक, उस ऊंचाई पे ले गया। I feared God. मैं परमेश्वर पर भय रखने लग गया। I said, Lord, how could I have so missed this interpretation? मैं कहने लगा, प्रभु ये कैसे होने पाया कि इसकी अनुवाद मुझसे छूट गई है। The Lord said, because you've just been focusing on one aspect of my word. परमेश्वर कहने लगा, क्योंकि मेरे वचन की सिर्फ एक पहलू के ऊपर तो ध्यान दे रहा था। He said it was because I could only see one aspect of God. क्योंकि वो कहने लगा कि मैं सिर्फ परमेश्वर का एक ही पहलू को मैं देखने पाया। At this same time, when God's doing this fresh work in my heart, और ऐसे ही समय पर जैसे परमेश्वर एक ताजा काम मेरे जीवन में कर रहा था, I was visited by the spirit and power of Elijah. और तब मैं आत्मा और सामर्थ एलिया से मुलाकात किया। It's very interesting because I was visited in a place called Adelaide. और बहुत ही दिलचस्प बात है, जो एडले करके स्थान है, वहीं पर मुझे ये मुलाकात मिली। Adelaide was the hometown of Alexander Dowie. अलेक्जेंडर डाउरी का जो गृह स्थान था एडलेड। For those of you who don't know who Alexander Dowie was, जिन लोग को पता नहीं था कि अलेक्जेंडर डाउरी कौन है, he was one of the most powerful early Pentecostal revivalists that came on the scene around the turn of the century. और वो एक ऐसे प्रसिद्ध और सामर्थी पेंटेकोस्ट की रिवाइवल की एक प्रचारक थे उस सदी के समय पर। He came to my nation in the late 1800s, a place called Chicago, Illinois. हमारे देश में जो शिकागो इलिनॉय कहते हैं, वहां पर 1800 सदी में वो वहां पर आए थे। He established
one of the first ministries of apostolic power, healing, signs, and wonders since the early church. और उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे, वो प्रेरित दिनों की कार्य जो सामर्थ्य रीति का चंगाई और छुटकारे का वहां पर जो प्राचीन कलीसिया में हुआ करता था वहां पर उन्होंने किया। Although he ended in air, he still came in the spirit and power of Elijah. और जबकि उनकी जीवन की समाप्ति हो चुकी थी मगर वहां पर वो आत्मा और सामर्थ एलिया का उसके द्वारा प्रकट हुए। I find it very prophetic that this is the place that I was visited by the spirit and power of Elijah, his hometown in Australia. और मुझे महसूस हुआ कि वहाँ जिस स्थान में वो जन्म हुआ है वहीं पर मेरी मुलाकात हुआ है आत्मा और सामर्थ एलिया के। When the spirit and power of Elijah first came to me, it was right around the time when I turned 32 years old. आत्मा और सामर्थ एलिया का जब वो मुलाकात हुआ तब मैं 32 साल का था। The Lord came to me in a vision. परमेश्वर दर्शन में मुझसे मुलाकात किए। The Lord came with a gift. He was holding something in his hands for me. परमेश्वर एक वरदान के साथ आए थे, उनके हाथ में कुछ रखे हुए थे। As the Lord came closer, I could see what he was holding. जैसा परमेश्वर मेरा करीब करीब आता रहा तब मुझे जानने लग गया कि उसके हाथ में क्या रखा हुआ है। It shocked me. मुझे बहुत ही चौंका दिया। He was holding a silver platter. और वो एक चांदी का थाली उनके हाथ में था। And on the platter actually was John the Baptist's head. और उस थाली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर था। He placed it in my arms. और उन्होंने मेरे हथेली पे रखा। If you recall from the scripture, this is exactly what happened when John the Baptist was beheaded. और अगर आपको वचन से याद होगा ऐसा ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सर काटा गया था। The King James uses the word charger. His head was placed on a silver charger. और वहाँ पे न्यू किंग जेम्स वर्जन की जो अनुवाद में लिखा गया अंग्रेजी में कि उसे एक थाली पे रखा गया था। And it's interesting because John the Baptist was beheaded at 32 years old. अब बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सर जब वो 32 साल का था काटा गया था। I received this visitation right when I turned 32. जब मैं 32 साल का हुआ तब मुझे ये वो मुलाकात मिला। It's interesting because just days before in America, I had just bought a new car. अब बहुत ही दिलचस्प बात इसलिए था क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही अमेरिका में मैंने अपने लिए एक नई कार खरीदा था। The new car that I bought was a Dodge Charger. और जो नए कार मैंने जो खरीदा है उसके नाम है डॉज चार्जर। It's all prophetic. ये सब भविष्यवाणी रूप में था। It's all signs of what was happening in that season. उस ऋतु में होने वाली हर एक बातों की इशारा था। But when the Lord placed that charger in my hands, he said something to me. जब परमेश्वर ने इस थाली को मेरे हाथों में सौंपा तो कुछ बात उन्होंने कहा। He said, "Are you ready to lose your head for the gospel?" क्या तुम तैयार हो कि सुसमाचार के लिए अपने सर खोने के लिए? Interesting statement. बहुत ही दिलचस्प वाक्य है। This didn't sound like the promotion I had been praying for. ऐसा नहीं था कि जिस जो है बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहा था ऐसे एक बढ़ोतरी की वायदा है। But this is what it means to be a true servant of the Lord that speaks the word of the Lord. मगर यही सच्चे परमेश्वर के दास के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सत्य रूप में प्रचार करते हैं। When you prophesy like the prophets of old faithfully, जब पूर्ण लोगों के समान आप अपने भविष्यवाणी को विश्वास योग्यता के साथ करते हो, when you preach the gospel faithfully like Jesus of Nazareth, like Paul the apostle did, ना सिर्फ यीशु के समान और पौलुस प्रेरित के समान अगर सुसमाचार को सच्चाई से आप प्रचार करेंगे, you will be headhunted. आपका सर काटा जाता है। First in the spirit, then in the natural. पहला आत्मिक श्रेणी में और बाद में प्राकृतिक श्रेणी में। The hordes of hell will be arrayed against you. और पूरे सारे जो घोड़े जो नरक का है तेरे विरोध में दौड़ने लग जाएंगे। Satan hates the full gospel. संपूर्ण सुसमाचार को शैतान विरोध करता है। Satan hates the proclamation of the word of God. शैतान विरोध करता है कि परमेश्वर की वचन की घोषणा करने की। Satan doesn't fear the watered down gospel that's being preached in so many churches today. शैतान उन चीजों से डरता नहीं है जो पानी उंडेलने लायक सुसमाचार आज कलीसियाओं में प्रचार किया जाता है। He knows that John chapter 8 says that when people know the truth, then they'll be set free. Only then. और वो जानता है कि जैसे यूहन्ना 8वें अध्याय में कहता है कि जब लोग सत्य को जानेंगे, सत्य ही उन्हें स्वतंत्र करेगा। So much of the church today in presenting a watered down gospel is withholding truth from men and women. और आज कलीसिया में दिया जा रहा जो सुसमाचार जो पानी उंडेलने लायक है कि उन लोगों को स्त्री और पुरुषों को वो रोक रखा है। Satan doesn't fear this gospel because
he knows if the truth is withheld, men and women will stay in darkness. शैतान इन सुसमाचार से डरता नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर की सत्य और ज्योति मनुष्य के लिए रोका जाए और मनुष्य तक ना पहुंचे तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। But the spirit and power of Elijah comes with a fresh wave of purity in the prophetic. मगर आत्मा और सामर्थ एलिया का आता है ताकि हमारी भविष्यवाणी और संदेश में शुद्धता को ले आता है। If you recall, John the Baptist lost his head for speaking the truth to Herod, who was the head of state. आपको याद होगा कि याद करके देखे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सर इसलिए काटा गया क्योंकि उसने सत्य बोला वहां के अध्यक्ष के विरोध में, जो वहां पर हेरोदेश था। He rebuked Herod, saying, "It's unlawful for you to lie with your brother's wife." और हेरोदेश को डांटा और कहा, ये गैर कानूनी है या नियम के अनुसार उचित नहीं है कि अपने भाई की पत्नी के साथ सोएं। John the Baptist didn't just have a message saying, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास सिर्फ यही संदेश नहीं था कि देखो ये परमेश्वर के मेमना है जो संसार के पाप को उठा लेने के लिए आया है, But he boldly called out sin. और वो साहसपूर्वक पाप को दर्शाया। God needs servants like this today परमेश्वर के लिए इस प्रकार की दासों की, सेवकों की जरूरत है that will boldly tell about the love of Jesus, but also boldly tell of the consequence of sin. लोग जो साहसपूर्वक यीशु के प्रेम की प्रचार करें, साथ ही साथ साहसपूर्वक प्रचार करें पाप के विरोध में भी। There's some people that will not be saved until they are first warned. कुछ लोग ऐसे हैं वो तब तक बचाए ना जाएंगे जब तक आप उन्हें चेतावनी ना दें। So it was at this time in my life that I began to receive a new prophetic mantle. और यही मेरा समय था मेरे जीवन में, एक नई भविष्यवाणी की चद्दर मेरे पर आ रहा था। It came with sobriety. It came with seriousness and urgency. और ये बड़े चौंकाने लायक मेरे पास आया, एक गंभीरता को बताते हुए और एक जल्दबाज को बताते हुए। I immediately started to be rejected for this message. और कई बार मेरी संदेश की वजह से मुझे इनकार किया गया था। But every prophet has to go through this. मगर हर भविष्यवक्ता को इसमें से गुजर के जाना है। They have to be willing to be rejected by man in order to obey God. और वो इच्छुक रहे कि परमेश्वर के लोग मनुष्य के द्वारा त्यागा जाए और परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाए। I had to boldly start speaking about the judgments of God that were being poured out on my nation. मैं साहसपूर्वक अपने राष्ट्र के ऊपर भेजा गया उस न्याय के विषय में मैं साहसपूर्वक प्रचार किया। It was very difficult, especially because I had so many friends that didn't understand what God was doing in my life. मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि ऐसे कुछ खास दोस्त लोग थे मेरे जीवन में, वो समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है। But this is the price that God requires his Elijah messengers to pay. It's a price that is of misunderstanding. और एलिया के संदेशवाहकों के लिए यही कीमत है कि अपने संदेश के लिए कीमत देना पड़ता है कि वो तिरस्कार किए जाएंगे। We're going to continue on this subject next week. इस शीर्षक पर हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता, हम धन्यवाद देते हैं for releasing the spirit and power of Elijah today. आत्मा और सामर्थ एलिया का जो हमारे पर आजाद करने के लिए। We thank you for raising up a fresh fire in the prophetic movement. हम धन्यवाद देते हैं कि एक ताजी आग जिस चलन में हमारे लिए ऊपर उंडेल रहे हैं। We thank you for cleansing and purifying our proclamation of the gospel today. धन्यवाद कि शुद्ध कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं हमारे सुसमाचार की घोषणाओं को। Let us walk in your righteousness, Lord Jesus, and be as bold as lions. प्रभु, हम आपके धार्मिकता में चलने पाए और एक सिंह के समान साहसी बनने पाए। Let us roar the truth, Lord, without any thought of our own lives. हम आपके सत्य को हमारे जीवन में बिना कुछ सोच विचार रखे हम गरजने पाए। Lord, we thank you for grace and help आपके अनुग्रह और मदद के लिए धन्यवाद देते हैं for doing this work before you, Lord. और इस कार्य को हमारे लिए करने के लिए पिता, In your name, आपके नाम में amen. आमीन। God bless you guys. प्रभु सब आपको आशीष दें। Thanks for joining me for this special broadcast this week on Angel TV. एंजल टीवी के इस हफ्ते की खास इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। We'll see you next week. अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org.
आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विल्लीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।